Hello, dear students. You are most welcome in this online class. Friends, we have categorically discussed earlier introductory part of jurisprudence, legal theory, and philosophy. Legal philosophy. Today we will discuss the definition, nature, and scope of jurisprudence. But before studying and analyzing the various definitions of jurisprudence given by different thinkers of different schools of jurisprudence, we should understand what the jurisprudence is or what is jurisprudence. Thus, first of all, we will discuss what is jurisprudence. Thereafter, we will discuss and analyze the various definitions of jurisprudence given by various thinkers of different schools of jurisprudence. So, let us start. What is jurisprudence? Friends, jurisprudence is not merely a study of abstract ideals which governed human conduct during different periods or a set of concrete rules based on determinism and induction. It is also a value-oriented method to resolve varying social interests which call for legal recognition and enforcement. It is indeed an intellectual inquiry and exercise concerning the nature of law and basic functions of law, relationship between law and justice, and law and morality, etc. Functionally speaking, it is a technique or methodology to devise, design, and identify such pressing demands or needs or problems which require solution within the parameter of law and other social norms. Thus, study of jurisprudence is both theoretical and functional. A theoretical exercise concerning the development of law as it has evolved, whereas it is functional perception of social processes, ethos, and other forces which shape and condition the ultimate quality and content of legal system. It is not merely an intuitive reflection or value-oriented method to sensitize the community and its rules to the requirements of justice, equality, and morality. It is no more a study of vague ideas, vague ideals, irrelevant to the needs and values of society. Jurisprudence is an experimental study of legal ideas and ideals and of social philosophy and political ideology in form and content.
nature, and function, which make it a living and dynamic discipline, a master science of legal thought. Therefore, an attempt to explain its nature and meaning is necessary for its proper understanding. Broadly speaking, jurisprudence is normative evaluation of basic legal values and ideals which impart validity and recognition to a legal system. It is a conceptual analysis of theory of law correlated to socio-political goals of a society which provide explanation, justification, and meaning to the totality of legal system. Thus, in brief, we have tried to understand what the jurisprudence is. Now, we will study the definitions of various scholars of repute. Friends, definition can be divided in three parts: idealist definition, analytical definition, sociological definition, etc. Before 19th century, law was an inseparable part of religion, philosophy, nature, myth and beliefs. अर्थात 19वीं सदी के पहले विधि कैसी थी? यह धर्म, दर्शन, प्रकृति, मिथ अर्थात रहस्य और विश्वासों का अभिन्न अंग थी. And therefore it was understood and interpreted as a product of reason, intuition, nature, morality, ethics and custom etc. अर्थात जब यह धर्म, दर्शन, प्रकृति, रहस्यों और विश्वासों के अभिन्न अंग के रूप में मानी जाती थी, विधि को माना जाता था, तो इसको जो समझने का प्रयास किया गया वह समझने का प्रयास किया गया और उसी रूप में इसकी व्याख्या की गई. किस रूप में व्याख्या की गई? वह व्याख्या थी कि विधि की उत्पत्ति तर्क से होती है, युक्ति से होती है, अनुभूति से होती है, प्रकृति से होती है, नैतिकता से होती है, नीति शास्त्र से होती है और परंपरा से होती है. ये सभी अर्थात विधि की उत्पत्ति युक्ति, धर्म, अनुभूति, परंपरा, नैतिकता, नीति शास्त्र इन सब से होती है. एंड वन वेल नोन jurist Ulpian represented this era and says that jurisprudence is the knowledge of things divine and human, the science of just and unjust. अर्थात विधि शास्त्र मानवीय एवं दैवीय बातों का ज्ञान है तथा न्याय एवं अन्याय का विज्ञान है. यह बात अल्पियन ने कहा कि जुरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ थिंग्स डिवाइन एंड ह्यूमन, दैवीय एवं मानवीय बातों का ज्ञान है
तथा न्याय और अन्याय का विज्ञान है। दूसरे शब्दों में कहें तो अल्पियन ने विधि शास्त्र को मानवीय एवं दैवीय घटनाओं का सर्वेक्षण और न्याय तथा अन्याय का बोध माना। एक्चुअली अल्पियन का यह विश्वास था कि कोई ऐसा परम अधिकार है जिसके अनुरूप विधि को होना चाहिए और विधि शास्त्री को इसका ज्ञान होना चाहिए। तो इस तरह से अल्पियन द्वारा दी गई परिभाषा बहुत ही व्यापक है और इसकी परिधि में धर्म, नीतिशास्त्र और दर्शन सब आ जाता है। यह इसलिए कहा जाता है कि यह परिभाषा बहुत ही व्यापक है और उसने हिज फिलॉसफी ऑफ लॉ कैन बेटर बी अंडरस्टूड बाय हिज फेमस फार्मूला विच एम्प्लॉय इन हिज कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, नेमली टू लिव ऑनेस्टली, टू इंजर नो वन एंड टू गिव एवरी मैन हिज ड्यू। अर्थात ईमानदारी से रहें, किसी को नुकसान न पहुंचाएं और प्रत्येक व्यक्ति को जो उसका ड्यू है, जिसका वह अधिकारी है, उसको दें, उसको प्रदान करें। तो ये उसके सिद्धांत से जो बातें निकलती हैं कि वह इसका यह विश्वास था कि ऐसा कोई परम अधिकार है जिसके अनुरूप विधि को होना चाहिए, जैसे ईमानदारी से रहें, जैसे जिस व्यक्ति का जो ड्यू है उसको दें, किसी को दुख न पहुंचाएं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कहीं न कहीं इसकी अनुभूति अल्पियन को थी और अल्पियन ने उस रूप में विधि शास्त्र को डिफाइन करने का प्रयास किया। इसलिए कहा जाता है कि अल्पियन की परिभाषा बहुत ही व्यापक है। इसकी परिधि में धर्म, दर्शन सब कुछ आ जाता है, सब समाहित है। धर्म, नीति शास्त्र, दर्शन सब समाहित है इसकी परिभाषा में। दूसरी परिभाषा देखें तो वह सिसरो देता है, वो भी आइडियलिस्टिक डेफिनेशन ही देता है। सिसरो कहता है कि जुरिस्प्रूडेंस इज द फिलॉसफिकल एस्पेक्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ लॉ, अर्थात विधि शास्त्र विधि के दार्शनिक पक्ष का ज्ञान है। तो ये कहता है कि द स्टडी ऑफ लॉ मस्ट बी डेराइव्ड फ्रॉम द डेप्थ ऑफ फिलॉसफी। दर्शन की गहराइयों से विधि के अध्ययन को, दर्शन से विधि के अध्ययन को प्राप्त किया जाना चाहिए और बाय एग्जामिनेशन ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड ऑफ ह्यूमन सोसाइटी द प्रिंसिपल्स मे बी डिस्कवर्ड इन कंपेरिजन विद द रूल्स ऑफ पॉजिटिव लॉ। वो कहता है कि पॉजिटिव लॉ की अपेक्षा, विध्यात्मक विधि की अपेक्षा लोगों के मस्तिष्क से, मानव समुदाय से, कि परीक्षण से जो है ज़्यादा अनुभूतियों से ज़्यादा अच्छी तरीके से कानून को डेराइव किया जा सकता है, कानून को व्युत्पन्न किया जा सकता है। तो ये इन लोगों ने विधि की परिभाषा रिलीजन के टर्म्स में किया, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ सोशल परसेप्शन, इन टर्म्स ऑफ मिथ्स, इन टर्म्स ऑफ नेचर, इन टर्म्स ऑफ मोरलिटी, इन टर्म्स ऑफ एथिक्स। इन लोगों ने, इन दोनों ही विधि शास्त्रियों ने इस रूप में विधि शास्त्र को परिभाषित किया। अब देखते हैं जरा एनालिटिकल डेफिनेशन ऑफ जुरिस्प्रूडेंस देखें। विधि शास्त्र की विश्लेषणात्मक परिभाषा। विश्लेषणात्मक परिभाषा के क्षेत्र में जब हम अध्ययन करने चलेंगे तो सबसे पहले हमको जॉन ऑस्टिन को देखना पड़ेगा। ऑस्टिन को इंग्लिश जुरिस्प्रूडेंस का जनक कहा जाता है, आंग्ल विधिशास्त्र का जनक कहा जाता है। हालांकि इस संबंध में थोड़ा सा मतभेद तमाम विधिशास्त्रियों में हैं, क्योंकि कुछ लोग बेंथम को कहते हैं कि अगर बेंथम का सिद्धांत पहले आ जाता तो ऑस्टिन की जगह बेंथम को आंग्ल विधिशास्त्र का जनक माना जाता। लेकिन ऑस्टिन की कृति पहले आई। हालांकि यह कहा जाता है कि बेंथम ऑस्टिन का गुरु था, बेंथम से तमाम चीज़ें ऑस्टिन ने सीखी थी, उसके सिद्धांतों से तमाम चीज़ें उसने लिया था। लेकिन फिर भी
ऑस्टिन को फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस, मेरे विनम्र मत में यही है कि ऑस्टिन को ही फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस या एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस कहा जाना चाहिए। उसके पीछे तर्क है। जब हम बेंथम को अध्ययन करेंगे आगे चल करके, हम लोग उसका थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, कुछ पार्ट उसका एक्सपोजिटोरियल और सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस पर जब हम लोग आएंगे तो वहाँ हम लोग अध्ययन करेंगे कि बेंथम के सिद्धांत में मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपुल, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपुल, हालांकि यह सिद्धांत प्रिस्टले का था, वहाँ से इस सिद्धांत को बेंथम ने लिया था, बहुजन सुखाय का सिद्धांत, जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि वह उपयोगितावादी विश्लेषणात्मक चिंतक था, यूटिलिटेरियन एनालिटिकल थिंकर था वो। जबकि ऑस्टिन में ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस या सैडनेस कुछ नहीं आता है, वो कहता है कि लाइस कमांड ऑफ सॉवरेन, वीर संप्रभु का समादेश। तो उसमें उसने विधि को केवल और केवल विधि के परिधि में रख करके सोचा है। उसने विधि को इंट्रूशंस, कमांड, लॉ एंड ऑर्डर के टर्म्स में सोचा है, उपयोगितावाद के टर्म्स में उसने नहीं सोचा। खैर, ये तो बात हो गई बेंथम और ऑस्टिन के बीच अंतर की। अब हम जरा देखें कि ऑस्टिन ने जूरिस्प्रूडेंस के बारे में क्या कहा है। ऑस्टिन ने कहा कि जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, अर्थात विधिशास्त्र विध्यात्मक विधि का दर्शन है। अब उसने एक समस्या खड़ी कर दिया। समस्या ये खड़ी हो गई, वो कहता है कि एक तरफ तो वह फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ साइंटिफिक मेथड, अर्थात राज्य द्वारा बनाई गई विधि, राजनीतिक सत्ता द्वारा बनाई गई विधि की वह बात करता है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाई गई विधि का बात करता है। इसको विध्यात्मक विधि भी कहते हैं, इम्परेटिव आज्ञापक विधि भी कहते हैं, सत्तात्मक विधि भी कहते हैं, जिसको सत्ता द्वारा बनाई गई हो। ये सारे टर्म क्वाइन कराए जाते हैं इसके साथ। तो वो कहता है कि जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, ये बात कहता है। एंड ऑस्टिन हैज यूज्ड द टर्म फिलॉसफी ऑन द वन हैंड एंड पॉजिटिव लॉ ऑन द अदर हैंड। एक से साथ दोनों बातें कहता है कि विध्यात्मक विधि का दर्शन है। तो विधि शास्त्र क्या है? विध्यात्मक विधि का दर्शन है। तो एक तरफ पॉजिटिव लॉ की भी बात करता है, वैज्ञानिक मेथड की भी बात करता है, दूसरी तरफ दर्शन की भी बात करता है। दोनों बातें वो एक ही साथ करता है। ये एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। तो अब जरा सा देखा जाए उसके ऑस्टिन की डेफिनेशन का हम लोग एक आलोचनात्मक परीक्षण करें और ज़रा देखें कि क्यों ऐसा हुआ, क्या ऐसा हुआ। मित्रों, एक बात बता दें, हर युग का अपना एक युग धर्म होता है। जैसे जब विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया तो उस विदेशी आक्रांताओं से, आतताइयों से लड़ने के लिए हमारे अपने धर्मगुरुओं ने यह कहा कि जो माँ 11 बच्चों को पैदा करेगी वो वीर माँ होगी। लेकिन जब हम आज़ाद हुए, हमारे संसाधन सीमित होते गए, जनसंख्या बढ़ती गई, तो आज का युग धर्म क्या बन गया? पहले यह नारा दिया गया कि हम दो हमारे दो, अब यह होता है कि नहीं भाई एक ही बच्चे होने चाहिए। आज का युग धर्म यह है कि जनसंख्या को नियंत्रित करो। आज का युग धर्म है। किसी समय का युग धर्म था कि जनसंख्या अधिक हो। हर काल का एक काल धर्म होता है, हर युग का एक युग धर्म होता है। तो इसी तरह से हर युग के कुछ हाल मार्क्स होते हैं, कुछ प्रमाण चिन्ह होते हैं। जैसे ऑस्टिन ने विधिशास्त्र की जब परिभाषा किया तो उसमें विज्ञान का प्रयोग न करके उसने दर्शन शब्द का प्रयोग किया। वो यह भी कह सकता था, जैसे उसने कहा कि जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, तो यह भी कह सकता था कि जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। कोई बात बिगड़ती नहीं, सब कुछ अच्छा रहता। उसके जो कॉन्सेप्ट्स थे उसके आधार पर, उसके अनुसार हो रहा था। लेकिन उसने
विज्ञान शब्द का प्रयोग न करके दर्शन शब्द का प्रयोग किया। यह अस्वाभाविक थोड़ा सा लगता है, लेकिन विभिन्न विधाओं, विभिन्न अनुशासनों के विकास के चिंतन के क्रम में यह अगर देखा जाए तो यह अस्वाभाविक नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि हर शताब्दी का एक प्रमाण चिन्ह रहा है। जैसे 17वीं और 18वीं शताब्दी में विद्वानों की सोच एवं विचार में विज्ञान की जगह दर्शन ज़्यादा प्रिय था, विज्ञान की जगह दर्शन ज़्यादा प्रिय था। अब जब दर्शन ज़्यादा प्रिय था तो दर्शन के तौर पर ही किताबें लिखी जाएंगी, दर्शन पर ही इन टर्म्स ऑफ फिलॉसफी सारी बातें की जाएंगी। जैसे भौतिकी को देकार्ते ने दर्शन के तौर पर लिखा, भौतिकी पर ही न्यूटन की महान कृति जो आई उसका नाम था द मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलॉसफी रखा गया। इस संबंध में समाजशास्त्री विधिशास्त्री अमेरिका के डीन रॉस्को पाउंड ने एक बड़ा अच्छा उन्होंने क्रमवार विभाजन किया। उन्होंने कहा कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में दर्शन की लोकप्रियता रही है, 19वीं सदी में इतिहास की लोकप्रियता रही, जिसमें इतिहास को आधार बना करके तमाम अनुशासनों में अध्ययन किए गए। 19वीं सदी को एक तरीके से हिस्टोरिकल रोमांटिसिज्म कहा जाता है। इसी तरह से 20वीं सदी में विज्ञान और टेक्नोलॉजी का युग आया। तो 20वीं सदी में क्या हुआ, सामाजिक विज्ञानों में सामाजिक विज्ञान हो गया, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, लीगल साइंस हो गया। तो इसमें इसी क्रम में ऑस्टिन ने फिलॉसफी शब्द का प्रयोग किया है। उससे भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, उससे हालांकि थोड़ा सा अस्वाभाविक लगता है, लेकिन उससे भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। ऑस्टिन का जो दर्शन से आशय था वह सामान्य विधि शास्त्र से था, जनरल जूरिस्प्रूडेंस। विद्यात्मक विधि का दर्शन एक विशिष्ट अर्थ में किया और एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में किया, सामान्य विधि शास्त्र और दर्शन को। जैसा कि दर्शन शब्द की व्याख्या जब हमने पिछले व्याख्यान में किया था, तो दर्शन का तात्पर्य हमने बताया था कि किसी सार्वजनिक सोच को, जो परसेप्शन अनुभूति हो सार्वजनिक स्तर पर, तो उसकी परिभाषा जो की जाती है ऑस्टिन की परिभाषा पर जब हम लोग विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि ऑस्टिन की परिभाषा का तात्पर्य कई विधिक व्यवस्थाओं में, तमाम अनेक विभिन्न विधिक व्यवस्थाओं में पाए जाने वाले सिद्धांतों, धारणाओं, अवधारणाओं, मनोवेगों, मनोभावों, नोशंस जिसको कहेंगे, या विभेद, इससे है उसका तात्पर्य। इसी तरह दर्शन का तात्पर्य सामान्य विधि सिद्धांतों से है। एक्चुअली ऑस्टिन ने विधि शास्त्र को दो हिस्सों में बांटा था। एक हिस्सा उसका था सामान्य विधि शास्त्र और दूसरा हिस्सा था विशिष्ट विधि शास्त्र। विधि शास्त्र की परिभाषा देने से पूर्व ऑस्टिन इस तथ्य से भली भांति अवगत था कि विधि शास्त्र शब्द का प्रयोग संदिग्धता से मुक्त नहीं है। इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम द क्लचेज ऑफ एम्बिग्यूटी, मुक्त नहीं है। तो इसलिए उसने कहा कि विधि शास्त्र का प्रयोग दो मुख्य अर्थों में हुआ। एक, उसने कहा कि विधि शास्त्र का प्रयोग विज्ञान के रूप में हुआ। अब विज्ञान के रूप में कैसे हुआ? विज्ञान के रूप में विधि के ज्ञान के तौर पर किया गया है, जिसमें इसको लागू करने की कला या व्यावहारिक आदत अथवा दक्षता शामिल है। इस रूप में तो व्यवहार किया गया। और दूसरा, इसका प्रयोग विधायन के लिए किया गया, लेजिस्लेशन के लिए किया गया, जो अच्छी विधि बनाने की दशा में विधि कैसी होनी चाहिए इसका विज्ञान है। इसीलिए ऑस्टिन कहता है कि विधायन, लेजिस्लेशन विधि शास्त्र का पूर्वाभास रखता है, जबकि विधि शास्त्र विधायन का पूर्वाभास नहीं रखता। अर्थात विधि शास्त्र के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं? विधि शास्त्र के अंतर्गत
निश्चित रूप से विद्यमान विधि का अध्ययन किया जाता है, एग्जिस्टिंग लॉ का अध्ययन किया जाता है। और एग्जिस्टिंग लॉज ही चाहे विशिष्ट विधि शास्त्र हो चाहे सामान्य विधि शास्त्र हो, इन दोनों की विषय वस्तु हो सकती है। अभी हमने आपसे कहा कि ऑस्टिन ने विधि शास्त्र को दो हिस्सों में बांटा, सामान्य विधि शास्त्र और विशिष्ट विधि शास्त्र। जरा सा दोनों को हम लोग समझ लें कि दोनों का क्या अर्थ निकलता है। जब सामान्य विधि शास्त्र की बात हम करेंगे तो इस क्रम में अगर हम देखें तो जितने भी देश हैं, हर देश की अपनी अपनी अलग अलग विधिक प्रणालियाँ होती हैं, अलग अलग विशेषताएं होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं, कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं और कुछ ऐसे डिफरेंसेस होते हैं। सिद्धांत, मनोभाव और विभेद ऐसे होते हैं जो सभी विधिक प्रणालियों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं, और ऐसी समानताएं इनको कोरिलेट करती हैं, इन सभी विधिक प्रणालियों को कोरिलेट करती हैं, इनको एक दूसरे से संबद्ध करती हैं, क्योंकि इनमें से बहुत से सिद्धांत प्रायः सभी प्रणालियों में पाए जाते हैं। तो जो सिद्धांत सभी प्रणालियों में पाए जाते हैं, वे सिद्धांत, वे मनोभाव, वे विभेद सामान्य विधि शास्त्र से संबंधित होते हैं। अर्थात अगर दूसरे शब्दों में कहें तो सामान्य विधि शास्त्र से ऑस्टिन का आशय है, ऐसी विज्ञान से है, ऐसी साइंस से है जिसका संबंध सिद्धांतों, मनोभावों और विभेदों की व्याख्या से है, जो डिफरेंट लीगल सिस्टम्स में कॉमन होते हैं, सामान्य रूप से पाए जाते हैं। दूसरी तरफ विशिष्ट विधि शास्त्र क्या है? फिर से एक बार समझिए, सामान्य विधि शास्त्र, सामान्य विधि शास्त्र वह एक ऐसी व्यवस्था का वर्णन करता है जिसमें विभिन्न विधिक प्रणालियों में कौन से ऐसे सिद्धांत हैं, कौन से ऐसे मनोभाव हैं, कौन से ऐसे नोशंस हैं जो समान रूप से पाए जाते हैं, कॉमन है। जो कॉमन पाए जाते हैं वो सामान्य विधि शास्त्र की विषय वस्तु हैं। विशिष्ट विधि शास्त्र में क्या है? किसी निश्चित विधिक प्रणाली का अथवा उस विधिक प्रणाली के भी किसी एक भाग का विज्ञान है, जिसके अंतर्गत किसी एक विधि व्यवस्था जैसी भी वह है या जैसे कि वह पहले थी का अध्ययन आता है, जो किसी जो किसी राष्ट्र विशेष तक सीमित है, केवल एक ही राष्ट्र विशेष तक सीमित है। तो इस तरह से विधि शास्त्र विशिष्ट भी हो सकता है और सामान्य भी हो सकता है। विशिष्ट विधि शास्त्र किसी एक विधिक व्यवस्था का, चाहे वह वर्तमान विधिक व्यवस्था हो चाहे वह अतीत की विधिक व्यवस्था हो, उसका अध्ययन करता है, जो केवल एक राष्ट्र तक सीमित होती है, एक विशेष प्रणाली तक सीमित होती है या उसके किसी भाग तक सीमित होती है। एक ही विशिष्ट प्रणाली या उसके किसी भाग से संबंधित होने के कारण इसे विशिष्ट या राष्ट्रीय विधि शास्त्र भी कहा जाता है। तो इस तरह से ऑस्टिन ने एक नए युग का आरंभ किया। यूरोपीय महाद्वीप में अब तक विधि, नैतिकता और न्याय में कोई अंतर नहीं किया जाता था। सब एक दूसरे से गड्ढम गड्ढ थे, सब एक दूसरे से संबंधित थे, कोई अंतर नहीं माना जाता था। और ऑस्टिन की विश्लेषणात्मक पद्धति अपेक्षाकृत अधिक यथार्थ थी, बोधगम्य थी और व्यावहारिक थी। इसने अन्य देशों के विधिशास्त्रियों का भी ध्यान आकृष्ट किया। बाद के अंग्रेज विधिशास्त्रियों ने ऑस्टिन के अध्ययन को आगे विकसित किया। ऑस्टिन का विधिशास्त्र का जो स्वरूप दिया, जो मॉडल दिया और उसके अनुसार जो उसने विधि की व्याख्या किया, वो बता दें आपको, जो ये कहा जाता है कि अंग्रेज़ों का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। एक समय था कि कभी अंग्रेज़ों का सूर्य अस्त नहीं होता था, ब्रिटेन का सूर्य अस्त नहीं होता था। उसके पीछे ऑस्टिन का सिद्धांत था, लाइज कमांड ऑफ सॉवरेन था। विधि क्या है? विधि संप्रभु का समादेश। ए रूल लेड डाउन बाय पॉलिटिकल सुपीरियर फॉर द गाइडेंस ऑफ पॉलिटिकल इंफीरियर हैविंग कमांड ओवर हिम इज लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड। अर्थात राजनैतिक रूप से प्रवर द्वारा
राजनैतिक रूप से अवर के मार्गदर्शन के लिए अधिकथित नियम ही उचित तौर पर विधि है, ये कहा गया। तो इस तरह से उसने कॉलोनियल रूल को प्रोटेक्ट करने में बहुत बड़ी सहायता की। आगे विधि की डेफिनेशन तो जो उसकी है वो जब हम लोग एनालिटिकल स्कूल पढ़ेंगे तो वहाँ समझेंगे, वहाँ देंगे। इसलिए ऑस्टिन ने जो विध्यात्मक विधि का दर्शन शब्द का मैं समझता हूँ कि वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि दर्शन शब्द का प्रयोग उसने क्यों किया। अब एक दूसरी डेफिनेशन पर आते हैं, सामंड। डेफिनेशन ऑफ जुरिस्प्रूडेंस बाय सामंड। सामंड कहता है कि विधि शास्त्र नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांतों का मूल विज्ञान है। विधि शास्त्र नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान है। जुरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ। अब इस परिभाषा को अगर देखें तो इस परिभाषा में सामंड ने 3 तत्वों की बात किया है। पहला, जुरिस्प्रूडेंस इज द साइंस। दूसरा, साइंस किस बात का साइंस? साइंस ऑफ लॉ। दूसरी बात उसने कहा फर्स्ट प्रिंसिपल्स, प्रथम सिद्धांत या मूलभूत सिद्धांत। और तीसरा कहा नागरिक विधि। तो यह साइंस ऑफ लॉ, फर्स्ट प्रिंसिपल्स एंड सिविल लॉ, नागरिक विधि के मूलभूत सिद्धांतों का विज्ञान है या प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान है। अब जरा सा देखा जाए कि नागरिक विधि शब्द जो उसने किया है तो विधि से संबंधित में उसका क्या कहना था, विधि के संबंध में उसका वो क्या कहता था, यह ज़रा देखा जाए। सामंड विधि के बारे में कहता है कि लॉ इज लॉ अकॉर्डिंग टू सामंड कहता है कि लॉ इज बॉडी ऑफ रूल्स recognized by the state and applied by it in the administration of justice। अर्थात लॉ इज बॉडी ऑफ रूल्स, बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स recognized and applied by the state in the administration of justice। विधि नियमों अथवा सिद्धांतों का एक समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय प्रशासन में लागू करता है। ये बात कहता है सामंड। अब जरा देखा जाए सिविल लॉ, तो विधि की परिभाषा उसने दिया। सिविल लॉ का अर्थ क्या है? अब अगर आप सिविल लॉ की परिभाषा करेंगे, देखेंगे या सिविल लॉ की विवेचना देखेंगे तो सामंड का सिविल लॉ ऑस्टिन के विशिष्ट विधि शास्त्र से अलग नहीं आपको दिखेगा। सिविल लॉ का अर्थ है किसी देश विशेष की विधि। सिविल लॉ का प्रयोग म्युनिसिपल लॉ को इंटरनेशनल लॉ या अन्य विधियों से अलग करने के लिए सामंड ने किया था। नेक्स्ट बात आती है साइंस ऑफ सिविल लॉ। साइंस ऑफ सिविल लॉ के रूप में उसने विधि शास्त्र के 3 स्वरूपों की चर्चा किया। एक, लीगल एक्सपोजिशन, विधिक प्रतिपादन की चर्चा किया और कहा कि विधिक प्रतिपादन में क्या चीज़, किस बात का अध्ययन किया जाता है। उसने कहा कि इसका प्रयोजन किसी काल विशेष में प्रचलित विधि, व्यवसाय की विषय वस्तु का वर्णन करना है, यह कहा उसने। अर्थात वो कहता है जो लीगल एक्सपोजिशन की बात करता है वो एनालिटिकल जुरिस्प्रूडेंस से संबंधित है, विश्लेषणात्मक। कहता है कि इसका उद्देश्य ऐतिहासिक उद्भव या विकास या उसके नीतिपरक महत्व या विद्यमानता पर विचार किए बिना विधि के मूल सिद्धांतों का विवेचन करना है। अर्थात लीगल एक्सपोजिशन में क्या है? विधि के मूलभूत सिद्धांतों का विवेचन, विधि कैसे अस्तित्व में आई या विधि कैसे डेवलप हुई या उसकी क्या मोरल वैल्यूज़ है, उसके पीछे क्या मोरल्स है, इस पर अध्ययन नहीं करना है। केवल विधि का जो मूल सिद्धांत है उसका विवेचन करना है। दूसरी बात वो कहता है कि विधिक इतिहास, लीगल हिस्ट्री,
इसके बारे में वो कहता है कि इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट जो है, एक तो एनालिटिकल है, दूसरा हिस्टोरिकल है। हिस्टोरिकल में कहता है कि इसका उद्देश्य विधि की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित सामान्य सिद्धांतों का निरूपण करना है, सामान्य सिद्धांतों का विवेचन करना है। यह विधिक प्रणाली के मूल अवधारणाओं एवं मूल सिद्धांतों का इतिहास है कि जब तक हम मूल सिद्धांतों, मूल अवधारणाओं का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे, इसका अध्ययन है। और तीसरा इथिकल, नीति शास्त्रीय विधि शास्त्र, नीतिपरक महत्व। वो कहता है कि विधि का उद्देश्य, विधि शास्त्र का उद्देश्य विधि के नीतिपरक महत्व और पर्याप्तता का अध्ययन करना है। द एम ऑफ jurisprudence is to study the ethical importance and sufficiency of law and legal system। तो ये उसने कहा कि विधिशास्त्र के अध्ययन में तीनों बातों का, लीगल एक्सपोजिशन अर्थात एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस का, हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस का और इथिकल जूरिस्प्रूडेंस का, तीनों का अध्ययन अपेक्षित है। लेकिन उसने अपेक्षित तो तीनों का माना, तीनों को कहा कि तीनों का अध्ययन किया जाना चाहिए, लेकिन अपने अध्ययन की विषय वस्तु को उसने केवल एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस तक ही रखा। हालांकि उसने अपने अध्ययन से हिस्टोरिकल और इथिकल एस्पेक्ट को पूर्णतया बहिष्कृत नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसका मानना था कि ऐसा करने से विधि का विश्लेषणात्मक स्वरूप पूर्ण रूप से दर्शाया नहीं जा सकता। जब तक हिस्टोरिकल और इथिकल स्टडी नहीं की जाएगी लॉ और लीगल सिस्टम की, तब तक एनालिटिकल जो एस्पेक्ट है वो उसको पूर्ण रूप से दर्शाया नहीं जा सकता। हालांकि उसने प्रारंभिक रूप से अपने अध्ययन को केवल विश्लेषणात्मक ही माना है, लेकिन अगर देखा जाए तो उसके अध्ययन में प्रचलित विधिक दर्शन की अपेक्षा आंग्ल विधिक दर्शन के मुख्य धाराओं का अनुसरण है। तो ये तो अब दूसरी बात ये देखा जाए जरा सा कि सामंड की परिभाषा केवल नागरिक विधि तक ही सीमित है। विधिशास्त्र की परिभाषा उसकी केवल नागरिक विधि तक सीमित है और अपूर्ण भी है, क्योंकि इसमें प्राथमिक सिद्धांतों का ही समाविष्ट किया गया है, अन्य बातों को नहीं। हालांकि अगर तुलना की जाए ऑस्टिन और सामंड की परिभाषा की, तो सामंड विधिशास्त्र की परिभाषा जो देते हैं, उनकी परिभाषा ऑस्टिन की परिभाषा का एक तरीके से परिमार्जन है। इट इज रिफाइंड वर्जन ऑफ डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस गिवन बाय ऑस्टिन। तो यह उसने, सामंड ने ऑस्टिन के जनरल जूरिस्प्रूडेंस के प्रयोग पर आपत्ति तो व्यक्त किया था, जबकि विशिष्ट विधिशास्त्र की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस को और भी परिमार्जित और परिष्कृत करके उसको लागू किया। ऑस्टिन विधि निर्माण पर केवल जोर देते हैं, केवल विधि निर्माण पर जोर देते हैं कि लाइज कमांड ऑफ सॉवरेन। विधि क्या है? संप्रभु का समादेश। अगर संप्रभु ने कह दिया कि विधि है तो वह विधि है, चाहे वह नैतिक हो, अनैतिक हो, उचित हो, अनुचित हो, कुछ भी हो, लाइज कमांड ऑफ सॉवरेन। और एंड दिस डेफिनेशन प्रोवाइडेड आइडियोलॉजिकल जस्टिफिकेशन ऑफ इमरजेंस ऑफ फासिज्म। वैचारिक आधार प्रदान किया नाजीवाद के पनपने का ऑस्टिन की डेफिनेशन ने। लेकिन उसकी तो आगे चर्चा करेंगे जब एनालिटिकल स्कूल में चलेंगे। केवल विधि निर्माण पर ऑस्टिन जोर देता है। तो यह इंग्लैंड के परिप्रेक्ष्य में तो वो ठीक था कि रूल लेड डाउन बाय पॉलिटिकल सुपीरियर फॉर द गाइडेंस ऑफ पॉलिटिकल इन्फीरियर हैविंग कमांड ओवर हिम इज लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड। राजनैतिक रूप से प्रवर द्वारा राजनैतिक रूप से अवर के मार्गदर्शन के लिए अधिकथित नियम ही उचित तौर पर विधि है। वहाँ तक तो उचित था, क्योंकि ब्रिटेन को अपनी कॉलोनीज में रूल करना था। तो वहाँ एक ब्रिटेन की संसद युक्त, सम्राट युक्त संसद वहाँ संप्रभु होती थी, तो उसके कानून को समूचे कॉलोनीज में लागू करना था। तो वहाँ तो वो ठीक था। विधिशास्त्र की विषय वस्तु, संप्रभु के समादेश को विधिशास्त्र की विषय वस्तु माना। वहाँ सामंड ने यह माना कि इंग्लैंड की सभी विधियाँ विधायिका द्वारा नहीं बनाई गई।
सभी विधि विधायिका द्वारा नहीं बनाई गई, वरन न्यायालयों द्वारा भी निर्मित की गई। तो इस तरह से ऑस्टिन विधानोत्तर विधियों को अव्यक्त समादेश कहा, एम्प्लॉयड कमांड कहा। उस जिन आलोचनाओं का शिकार हो गए, जैसे न्यायालय ने अगर कोई कानून बनाया तो ऑस्टिन का मानना था कि न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को तब तक हम उचित तौर पर विधि नहीं मानेंगे जब तक कि संसद उसको रेटिफाई न कर दे या संप्रभु उसको रेटिफाई न कर दे। तो उसको इम्प्लाइड कमांड के तौर पर वो मान लेते थे। संप्रभु द्वारा जो अभिव्यक्त समादेश होता था उसी को कानून की श्रेणी में रखते थे, बाकी सब चीज़ों को वो इम्प्लाइड कमांड के अंतर्गत डाल देते थे। तो वहाँ उनकी वे आलोचनाओं के शिकार हुई ऑस्टिन। जबकि सामंड ने लॉ को कैसे डिफाइन किया, उसने कहा लॉ इज बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट एंड अप्लाइड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो कानून क्या है, विधि क्या है? विधि नियमों का एक समूह है जिसको राज्य मान्यता देता है और न्याय प्रशासन में उसको लागू करता है। तो इस तरह से राज्य द्वारा मान्यता और प्रवर्तनीयता, ये दो तत्व जोड़ दिया। तो जिन आलोचनाओं के शिकार ऑस्टिन हुए थे उन आलोचनाओं से सामंड बच जाते हैं और विधि शास्त्र के क्षेत्र को थोड़ा सा उदार बना देते हैं। तो यह दूसरी तरफ ऑस्टिन कहता लाइज कमांड ऑफ सॉवरेन, विधि संप्रभु का समादेश है, बस दैट्स ओके। उसमें कोई उद्देश्य नहीं बताता, उसके सैद्धांतिक पक्ष को उजागर करती है। वहीं सामंड की परिभाषा न्याय प्रशासन के संदर्भ में किया, क्रियाशील प्रतीत होती है। जैसे उसने कह दिया कि लाइज कमांड ऑफ सॉवरेन या ए रूल लेड डाउन बाय पॉलिटिकल सुपीरियर फॉर द गाइडेंस ऑफ पॉलिटिकल इन्फीरियर हैविंग कमांड ओवर हिम इज लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड। ये कह दिया। राजनैतिक रूप से प्रवर द्वारा राजनैतिक रूप से अवर के मार्गदर्शन के लिए अधिक कथित नियम विधि है। तो मार्गदर्शन थोड़ा सा उद्देश्य है कि मार्गदर्शन, लेकिन सामंड ने बिल्कुल क्लियर कट कहा। सामंड ने कहा कि विधि क्या है? विधि नियमों का समूह है। कैसे नियमों का समूह है? जिसे राज्य मान्यता देता है। और दूसरी तरफ और क्या है आगे? मान्यता तो देता ही है, साथ साथ न्याय प्रशासन में लागू करता है। तो सामंड की परिभाषा अधिक क्रियाशील है। सबसे बड़ी कमजोरी यही मानी जाती है ऑस्टिन की परिभाषा की, विधि शास्त्र की परिभाषा की, कि वह विधि के उद्देश्य को बिल्कुल नज़रअंदाज करती है। ऑस्टिन की परिभाषा बिल्कुल विधि के उद्देश्य को नज़रअंदाज करती है, जबकि सामंड की विधि शास्त्र की परिभाषा ज़्यादा समीचीन प्रतीत होती है, क्योंकि न्याय प्रशासन के संदर्भ में विधि की व्याख्या का एक स्पष्ट उद्देश्य है कि न्याय प्रदान करना, न्याय प्रदान करना, टू प्रोवाइड जस्टिस। ये एकदम स्पष्ट उद्देश्य विधि का बताता है। और इस रूप में अगर वो विधि की परिभाषा, विधि शास्त्र की परिभाषा करता है तो वो उसकी परिभाषा जो है ज़्यादा समीचीन होती है। और ऑस्टिन ने जिन तत्वों को विधान का विज्ञान, साइंस ऑफ लेजिस्लेशन कहकर विधि शास्त्र के क्षेत्र से बाहर रखा था, सामंड ने विधि की उद्देश्यात्मक व्याख्या के माध्यम से उन्हें विधि शास्त्र के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया। तो ये परिभाषा और उसकी व्याख्या हुई सामंड की। आज इतना ही। कल फिर हम लोग हॉलैंड की परिभाषा पर विचार करेंगे, स्टोन की परिभाषा पर विचार करेंगे और कीटन की परिभाषा पर विचार करेंगे। हॉलैंड, कीटन, एलन, पाउंड, इन लोगों की परिभाषाओं पर हम लोग, और स्टोन, इन लोगों की परिभाषाओं पर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग विचार करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।